السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہادیہ مغل کا ناول تہمت تمہارے عشق کی ایپیسوڈ 23 ہے۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، تھینک یو۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ اسے ہوش آیا تو خود کو بیڈ پر محسوس کیے وہ حواس بحال کرنے لگی، ذہن بیدار ہوا تو سب کچھ یاد آنے لگا تھا۔ گردن میں شدید درد تھا جبکہ سر اس سے بھی زیادہ بھاری تھا، جسم بے جان محسوس ہو رہا تھا، پر ہمت مجتمع کیے وہ کوہنیوں کے بل اٹھنے لگی۔ پر شایان کو دیکھ کر اس کی چیخ نکلی تھی، تمہارا بھائیوں سنم اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ شایان فکر سے بولے، اس کے پاس آئے، میرے پاس مت آئیں، پیچھے کھسکی تھی۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، بس مجھے شجیحہ لا دو، وہ لے آؤ گی تو تمہیں آزاد کر دوں گا۔ بھائی آپ اچھا نہیں کر رہے، وہ معصوم ہے، پلیز یہ سب مت کریں، اس کی شادی ہونے والی ہے۔ شایان کو سامنے فرون بنے کھڑے دیکھ کر وہ تھکن زدہ سی بولی، کل کے بعد اس کی ہمت ہی ختم ہو گئی تھی۔ تمہیں اپنے بھائی سے زیادہ اس لڑکی کی پرواہ ہے؟ کیا تمہیں اپنے بھائی کی محبت کا اندازہ نہیں ہے؟ میں اسے دل و جان سے چاہتا ہوں، جنون بن گئی ہے میرا، اور تم اپنے بھائی کا دل توڑ کر اسے درندہ بنا دینا چاہتی ہو۔ شایان ساگر لاچارگی سے بولا۔ صنم کو اس کے انداز پر کراہت محسوس ہوئی تھی۔ کیا تھا وہ شخص؟ وہ کبھی سمجھ ہی نہیں پائی تھی، اور جب پتہ چلا تو خود پر افسوس کرنے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ آپ درندے ہی ہیں، آپ نے انم آپی کو مار ڈالا، اپنی بہن کو مار دیا، آپ سے بڑا درندہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تم اپنے بھائی پر شک کر رہی ہو، اسے درندہ کہہ رہی ہو؟ صنم وہ معصومیت سے بولا۔ شک نہیں ہے، یقین ہے، اب میں جان گئی ہوں کہ آپ نے کیا گناہ کیے، وہ چیخی تھی۔ صنم بری بات، بڑا بھائی ہوں تمہارا، اور چھوٹے موٹے گناہ غلطیاں تو انسان کرتا ہی رہتا ہے۔ عام انداز میں بولتے اس نے شان کھلائے، وہ آپ کی بہن تھی بھائی، اور آپ نے غلطی نہیں گناہ کیا ہے اپنی ہی بہن کو۔ صنم کے آنسو بہے تھے۔ اس نے غلط راہ کا انتخاب کیا تھا جس کی سزا موت تھی۔ کیا آپ کو ذرا بھی رحم نہیں آیا تھا؟ تم اگر میرا کام بگاڑو گی تو میں تم پر بھی رحم نہیں کھاؤں گا۔ صنم نے تنفر سے سر جھٹکا۔ اچھا ہے کہ میں مر جاؤں، کیونکہ جو گناہ میں کر چکی ہوں اس کے بدلے تو مجھے دردناک موت ملنی چاہیے۔ چیکا میں بہت جلد کروں گا، تم پریشان مت ہو۔ ویسے ماں نے اچھا نہیں کیا تمہیں سچ بتا کے، کاش کہ وہ میری ماں نہ ہوتی تو آج وہ بھی انم کے پاس ہوتی۔ بھائی وہ آپ کی ماں ہے۔ صنم اس کی اس واقعیت پہ ایک بار پھر چیخی تھی، اس کا دل جیسے خوف سکڑا تھا۔ شایان نے آگے بڑھ کر صنم کے سرخ چہرے کو دیکھا، وہ خوف سے پیچھے کھسکی۔ شکر کرو وہ میری ماں اور تم میری بہن ہو، ورنہ شایان ساگر وہ درندہ ہی جس کے دل میں اپنے لیے بھی رحم نہیں ہے، اور تم تو پھر میری بہن ہو۔ اب تک تم سلامت ہو تو اس کے پیچھے بھی میرا ایک مقصد ہے، ورنہ اب تک تمہارے ٹکڑے کر کے میں کتوں کو کھلا چکا ہوتا۔ اس کے بال بری طرح چکڑے، وہ وحشت سے گھرایا تھا۔ میں باپ کے کسی مقصد کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ شایان نے اس کے بالوں کو مزید شکست سے جکڑا۔ صنم کی خوف و ڈر سے چیخ نکلی تھی۔ ایک پل کے لیے اسے لگا بال جڑ سے اکھڑ جائیں گے، تو پھر تم اپنی ماں کو کھونے کے لیے تیار رہنا۔ شایان نے اس کے بال چھوڑ کر اسے دور جھٹکا۔ اس کا سر بری طرح کراؤن سے لگا تھا، وہ درد سے کرا کر رہ گئی، آنکھوں کے گرد ایک بار پھر اندھیرا چھانے لگا۔ نہیں بھائی آپ کچھ نہیں کریں گے، وہ سر پر ہاتھ رکھ کے فریادی ہوئی تھی۔ پر شایان اسے نظر انداز کے اس کا موبائل چیک کرنے لگا۔ ویسے مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اس نے اب تک میسج کیوں نہیں کیا۔ اب اس کے وجود بھی بے چینی پڑنے لگی تھی، لیکن وہ صنم کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اللہ کرے وہ کبھی بھی میرے نمبر پر میسج نہ کرے، آپ جیسے درندے سے اللہ اس کی حفاظت ضرور کرے گا۔ شایان ساگر کا کہکا گونجا تھا۔ پاگل لڑکی، تمہیں کیا میرے چہرے پہ بے وقوف لکھا نظر آ رہا ہے؟ دیکھو غور سے، دیکھو اپنے بھائی کا چہرہ۔ 4 سال سے آزادانہ گھوم رہا ہوں، آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ شایان ساگر کو پکڑ سکے۔ 2 بار جیل گیا تھا، دونوں بار عوام نے وہ تباہی مچائی کہ فورس کو مجھے چھوڑنا پڑا تھا۔ اور تم میری بہن جو بقول تمہارے اپنے بھائی کو اچھے سے جانتی ہے، اسے بھی پتہ نہیں چل سکا کہ میں کیا ہوں، تو باقی دنیا کیسا میرا کچھ بگاڑ سکتی ہے؟ اور شجیحہ چودھری کو حاصل کرنے کا ذریعہ یہ موبائل بنے گا؟ قطعی نہیں۔ چاہوں تو ابھی اسی وقت اسے اٹھوا لوں، پر مجھے اس کے دل سے کھیلنا ہے، اس کے بھائی کو تڑپانا ہے، اسے خود سے محبت میں مجبور کرنا ہے۔ جتنی محبت میں اس سے کرتا ہوں اس سے زیادہ وہ مجھے چاہے گی، اور چاہتے چاہتے جان سے چلی جائے گی، اور اس کام کے لیے تھوڑا صبر تو کرنا پڑے گا۔ اس کا انداز عام تھا، پر اس میں شفافیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اور یہ اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے بوجھل بند ہوتی آنکھوں سے شایان کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر درندگی صاف نمایاں تھی۔ صنم کی بند آنکھوں کا اطمینان کیے وہ باہر نکلا۔ جب موبائل پر ہوتی بپ نے اسے حیران کیا، اور پھر اس کی پریشانی خوشی میں بدلنے لگی تھی۔ شام کو ساگر ویلا لے جانا اسے، اور ہاں پہرا سخت کر دینا، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ صنم کہاں ہے۔ اپنے خاص آدمی کو حکم دیے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔
उसे यज़दान की बेरुखी ने अंदर से बेचैन किया हुआ था। आज सारा दिन वो कमरे से नहीं निकला था, पर रोज़ को हुक्म दिया था कि शाम तक ताबीर को अच्छे से रेडी होने में मदद करे। और अब वो ड्रेस ज़रूरी लाज़िमात लेकर हाज़िर थी। पीच पिंक कलर का ये ड्रेस सिल्वर स्टोन वर्क से सजा काफ़ी कीमती और दीदा सेब था। ताबीर को हैरत होती थी इसके लिए यज़ान ऐसे ऐसे ड्रेसेस लाता जो उसने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे थे। इसकी वार्डरोब में भी एक से एक अलग तर्ज के मलबूसात थे जिन्हें अभी उसने छुआ भी नहीं था। इससे मैचिंग हर चीज़ हर दर्जा मुनफरिद और कीमती होती थी। क्या था वो शख्स इसके मामले में इतना मुनफरिद कैसे सोच लेता था? वो आज की शादी पर इसके मलबूसात वहाँ से सब अलग थे। कई लोगों ने इसे ब्रांड का भी पूछा था, पर इसे पता होता तो बताती। अब भी वो ड्रेस देखकर खुशगवारी में डली थी, जिसके साथ हील्स और नाजुक ज्वेलरी भी मौजूद थी। मैम, बॉस ने ख़ास हदायत दी कि आज आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा यज़दान ने कहा। तभी ने आंखें भलाई तसल्ली चाहिए। जी मैम, आप इनके साथ आज डिनर पर जाने वाली हैं। डिनर यानी वो आज मान जाएगा, उसने दिल में सोचा था। वैसे वो कहाँ है? तबीर अपनी मुस्कुराहट छुपाई बोली। बासित के साथ गए हैं, कहीं शाम होने से पहले आ जाएंगे। ठीक है, मैं फ़्रेश होकर आती हूँ, फिर मेरा मेकअप ओवर कर देना। रोज़ ने मुस्कुरा कर सर हिलाया था। वो गुनगुनाती हुई वॉशरूम की जानिब बढ़ी थी। उसने आईने में खुद को देखा तो पलकें झपकना भूल गई। रोज़ ने आज जैसे टोटली चेंज लुक दी थी। मस्कारा, आईलाइन से सजी आंखें मज़ीद कातलाना लग रही थीं। आज कुछ ज़्यादा ओवर मेकअप हो गया है। हम डिनर पर जा रहे हैं, कितना अजीब लगेगा ना, वहाँ तो बिल्कुल दुल्हन लग रही होंगी। नो मैम, सर का ऑर्डर था। उसके कानों में एयरिंग दुरुस्त करती रोज़ ने जवाब दिया। मम मुझे तो अभी से अजीब लग रहा है, पता नहीं ये स्थान कहाँ लेकर जाना चाहता है। मैम, पास आपको किसी खास जगह पर ही लेकर जाएंगे। ताबीर महज मुस्कुराई थी। चले मैम, मैं आपका दुपट्टा सेट कर दूँ। इसकी तैयारी को आखिरी टच देकर इसके कंधे पर दुपट्टा सेट करने लगी और फिर इसे लिए नीचे बढ़ने लगी, जहाँ मुलाजमा ने इसे यजदान के आने का बताया। पास आ गए मैम, आप जाएं बाहर और बास को मुकम्मल मना लीजिएगा। उसके चेहरे पर सुर्खी फैली थी। जिसदान का सामना करना उसे मुश्किल लगा। वो कदम लेती बाहर आई तो वो आज गाड़ी में बैठा था। वह दिल महसूस करके रह गई, लेकिन आज उसे हारना नहीं था। इसलिए दुपट्टा संभाल कर वो कदम उठाती गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर चुपचाप बैठ गई। जिसदान ने मुड़कर उसे देखा और फिर गोया पलक झपकना भूल गया। ताबी ने भी उसे देखा, जिसने पीच बिल्कुल मध्यम सा मिलता जुलता कुर्ता शलवार पहना था, पर अगर दोनों साथ खड़े होते तो वो शानदार लगते। यानी नवाब साहब नाराज़ भी हैं, लेकिन मैचिंग करना नहीं भूले। तभी ने थोड़ा सा तराक उसे देखा, जैसे बावर कराया कि आज मैं नाराज़गी दूर कर दूंगी। चलें, देर हो जाएगी। तभी ने अपनी चूड़ियों वाली कलाई सामने की, गोया उसका फसूद दौड़ा था। वो गला खंकारे गाड़ी स्टार्ट करने लगा। तबीर को इसके पर शदीद गुस्सा आया, पर फिर लबों पर मुस्कुराहट सजा ली। आधा सफ़र खामोशी से कटा। वो गाहे बगाए इस पर नज़र डाल लेती और जब भी उसे देखती दिल पुरसकून होने लगता। पर वह खामोशी से सफ़र नहीं काट सकती थी। वह नहीं बोल रहा था तो उसे ही कोई बात करनी थी। हम कहाँ जा रहे हैं जिस्तान? मुस्कुराहट आज उसके लबों से जुदा ही नहीं होती। शादी पर, उसने मुख्तसर जवाब दिया। शादी पर? मगर किसकी शादी पर यस्तान? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। वो अब मसनूई नाराज़गी से बोले। यस्तान की जानिब मुड़ी। आपको अपनी तैयारी से अंदाज़ा नहीं हुआ था? यस्तान ने तिरछी निगाह उस पर डाली। मम्मा, मुझे लगा तुम मुझे डिनर पर ले जा रहे हो। लब दबाती झिझक ज़दा है। ज़ाहिर है शादी का फंक्शन रात को है तो डिनर भी होगा ना। मैं इस डिनर की बात नहीं कर रही हूँ। अब चिढ़कर पड़ी। डिनर तो डिनर होता है, जैसा भी उसने शान सिखाई, जबकि ताबीर को उसके अंदाज पर हैरत हुई। अच्छा छोड़ो, ये बताओ शादी किसकी है? क्या मैं उसे जानती हूँ? और अगर वहाँ मुझे अकेलापन महसूस हुआ तो मैं क्या करूँगी? पर तुमने वहाँ मेरे साथ रहना है। उसने बात का रुख बदला। उसने मुस्कुराकर ताबीर को देखा, फिर एक लफ्ज़ी जवाब देकर ताबीर के सर पर धमाका किया था। मेरी? तुम्हारी शादी? मगर तुम्हारी शादी तो हो गई है। ताबीर को अपनी ही आवाज़ बेगानी लगी थी। इस शादी को आप मानती हैं? उसने गर्दन मोड़कर ताबीर को देखा, जिसकी आंखें किसी भी पल बह जाती। अगर मानती ना होती तो यहाँ तुम्हारे साथ ना आती। ये तो कोई वजह नहीं हुई। उसने नफ़ी में सर हिलाया। क्या वजह बताऊँ? बोलो, क्या चाहते हो? क्यों कर रहे हो शादी? वो अब दबा दबा सा चीखी, जबकि आंखों के किनारे भीगने लगे। शादी क्यों करते हैं? तुम्हारी शादी मुझसे हो चुकी है नौफयस्तान। वो अब अपने लहजे पर काबू नहीं रख पाई और हाथ की पोर से आंसू रख ले। कैसी शादी? कौन सी शादी? कभी मान रखा है शादी का? ऐसी होती है शादी। शादी नहीं समझौता है। वो अब फट पड़ा था। मैं तुम्हारी जान ले लूँगी यज़दान। उसके लफ्ज़ों पर ताबीर का दिमाग घूम गया था। यज़दान ने पूरी आंखों से ताबीर का सुर्ख होता चेहरा देखा और फिर उसकी गोद में अपनी कान रखी। ताबीर का सांस हलक में अटका था। ये क्या हरकत है? हटाओ इसे। वो सहम गई थी। चेहरे पर घबराहट फैलने लगी, पर यज़दान बेहिस पना नीचे झुका। अगला लम्हा उसकी नींद मजीद पाया था। अपना खास चाकू सीट के नीचे से निकालकर उसकी गोद में रख दिया। इस पर लटकता एन
ताबीर को किसी सांप की तरह लगा था जो इसे डस लेगा। यज़दान वो खौफ से चीखी थी, जबकि अब सांसें फूलने लगी थी। वो इसी पर नहीं रुका, एक तेज़ धार कटर भी डैशबोर्ड से निकाल कर उसकी गोद में रखा। कटर की हैबत काफ़ी अजीब थी। तुम पागल हो गए, ये हटाओ, मुझे खौफ आ रहा है, गन हटाओ। यज़दान ताबीर की पूरी सांसें गवाह थी कि वो डर गई, इसकी हालत बिगड़ रही थी। ताबीर ने इन चीज़ों को नीचे कराना चाहा। खबरदार जो इन्हें नीचे फेंका, जान लेना चाहती थी तो ले। इसकी वाज़ियत धमकी इसकी हालत मज़ीद ख़राब कर गई थी। यज़दान तुम्हें हो क्या गया, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, मुझे तुमसे खौफ आ रहा है। मम्मा मुझे घर जाना है, वापस मोड़ो गाड़ी। वो खौफ से बुरी तरह काम कर अब गोद में रखे इन हालात को देखने लगी थी। कितना डर लग रहा है। यज़दान ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। यज़दान ये कैसा सवाल है और ये तुम क्या कर रहे हो। उसकी भीगी खौफजदा आवाज़ पर यज़दान ने स्पीड मज़ीद तेज़ की। क्या चाहते हो तुम, मारना चाहती हो मार दो, पर ये सब क्यों कर रहे हो। रुको यज़दान, गाड़ी रोको, मुझे डर लग रहा है। यज़दान वो बुरी तरह हाँफने लगी। अगले ही पल यज़दान ने गाड़ी ब्रेक लगाए रोकी। गाड़ी के टायर बुरी तरह चरचराए थे। वह आगे को गिरी थी, पर यज़दान ने अपना हाथ रखकर उसका सर डैशबोर्ड से लगने से बचा लिया। तबीर अपने चेहरे को छुपाए चीखी थी। चीखें मत। वह तबीर के हाथ चेहरे से हटाता धाड़ा था। वो सदमाती अंदाज में उसे देखती थमी, पर इसका फूला तनफ़ुस जता गया था कि बुरी तरह डरी है। डर लगा था, दिल लरस गया था ना। ऐसा लग रहा था किसी भी पल आपकी जान निकल जाएगी। इसकी भूरी सुर्ख आंखों में एक आग थी। ऐसे ही मेरी जान निकली थी। मेरा दिल लरस गया था जब मेरे पहलू में बैठकर आपने वो सब सोचा था। उस शख्स को अपने दिमाग में लाई तो लाई कैसे, बोले किस हक से लाई थी। उसने स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारा। उसकी दहशत पर तभी डर सुझती थी। क्या वो शख्स इस हद तक इस मामले में पागल था। आपकी खामोशी को क्या समझूं, यानी मैंने जानबूझकर नहीं। वो अचानक अगले ही पल फूट फूट कर रोई थी कि जुमला मुकम्मल ही ना हो पाया। आंसू नहीं बहने चाहिए, वरना इस गन से मैं खुद को शूट कर लूँगा। वो गन गोंद से चिपट कर अपनी कनपट्टी पर रखे धाड़ा था। इसकी मजबूत हाथों की फूली रगे, लहू रंग आंखें, ताबीर माथे पर पड़े बलों ने जता दिया था कि वो उस पर शक करने से नहीं, बल्कि इसके एक जुमले से नाराज़ था, और इस हद तक नाराज़ था कि वो ताबीर को इसकी सज़ा भी दे गया था। यज़दान हटाओ, वो बुरी तरह तड़प कर चीखी थी। हटाओ यज़दान, उसकी जाने मुड़ती गन को उसकी कनपट्टी से दूर फेंकती उसकी शर्ट मुठ्ठियों में जकड़ती चीखी थी। गन नीचे करके उसकी निगाह से ओझल हो गई थी। क्या हरकत थी, अगर गोली चल जाती तो क्या होता मेरा, कहाँ जाती, सोचा है मेरा। अपनी जुनूनियत में तुम अपनी नहीं मेरी जान लेने वाले थे, मुझे मारने वाले थे। उसके सीने पर दोनों हाथ मारती हुई ज्यादती हुई हुई थी। और आपने मुझे पल पल मारा है ताबीर, हर पल, और इस दिन मार ही तो दिया था। यज़दान की धाड़ पर उसके चलते हाथ रोके उसने नफ़ी में सर हिलाया था। यज़दान, मैंने जानकर नहीं कहा था, बाहुदा मेरा कोई इरादा नहीं था। तुम क्यों नहीं समझ रहे। ताबीर को अपना ही लहजा बेगाना लग रहा था। मेरे निकाह में है आप, मेरे अलावा किसी को देखने का सोचने का हक नहीं आपको। फिर कैसे सोचा था, और हिम्मत देखे मेरे पहलू में बैठे उस शख्स को सोचा कि ज़रा भी डर नहीं लगा। इन्हें नहीं लगा होगा क्योंकि आपको मुझसे डर नहीं लगता। वो खुद ही राय कायम किए तो मस्खराना बोला, पर अब लगेगा आपको डर, इतना डर के सोते हुए भी यज़दान का ख्याल आपको बेचैन करेगा। इसकी पुरस्रार आवाज़ उसकी जान हवा का रही थी। यज़दान प्लीज़, वो फरियाद हुई थी, आपके दिलो दिमाग वजूद पर नौफर यज़दान का अक्स होना चाहिए, सिर्फ नौफर यज़दान का। अगर आज के बाद उस शख्स का जिक्र या ख्याल भी जहन में आए, इसी लम्हे अपनी जान खुद ले लूँगा। फिर अच्छे से उस शख्स को सोच लीजिएगा, मैं सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, कर गुजरूँगा। तबीर को अब इसकी जुनूनियत से खौफ आने लगा था। वो दूर होते विंडो से जा लगी, जबकि सांस लेने में उसे मुश्किल होने लगी थी। यज़दान ने वहशत भरी निगाह उस पर डाली। तबीर ने सहम कर सांस भी रोक ली। उसने चाकू और कटर जो उसकी गोद से गिर के थे उठाकर सीट के नीचे रखे। तबीर मजीद विंडो से जा लगी। वो सीधा और आंखें सख्ती से बंद करके कुछ देर बाद खोली और गहरा सांस लिया, जैसे खुद पर काबू पा रहा हो। तबीर का दिल चाहे यहाँ से भाग जाए, ये इसका यज़दान नहीं था। आज दूसरी मरतबा उसे यज़दान से बेइंतहा खौफ आया था, जिसकी शिद्दत पहले से भी ज़्यादा थी। उसने पानी की बोतल बॉक्स से निकाली और पूरी खाली करके विंडो से बाहर फेंकी, और फिर गाड़ी से ही बाहर निकल गया, जैसे अपने अमल पर पछताया हो। दरवाज़ा बंद हुआ तो उसकी दबी दबी सी चीख निकली। आंखों की बढ़ती नमी ने उसे बुरी तरह रोने पर मजबूर कर दिया था। अपना दुपट्टा लबों पर रखती हुई बढ़ती सिसकियों और चीखों को बमुश्किल दबा पाए, जैसे अगर ज़रा से भी आवाज़ इस शख्स तक पहुंची तो वो खुद को कुछ न कर ले। बाहर आए, उसने दरवाज़ा खोलकर उसकी कलाई पकड़ के खींचा। इसका अंदाज नम था, पर ताबीर को अब भी वो सर्द लगा। नहीं, मैं नहीं आऊँगी। ताबीर बाहर आई। यज़दान, मैं इसे नहीं सोचूंगी, इसका जिक्र नहीं करूँगी, बल्कि किसी का भी नहीं करूँगी, पर तुम खुद को कुछ नहीं करना। मैं मानती हूँ अपनी गलती, मान रही हूँ ना। ताबीर की फरियाद से यज़दान को बेसाख्ता उस पर तरस और खुद पर गुस्सा आया था।
वह सरफरी सी लड़की इसकी फ़िक्र में रोते हलकान हो रही थी। इससे ज़्यादा इसकी मोहब्बत की क्या गवाही होती। बस करें। वो इसकी भीगी आंखें साफ की नरमी से बोतों से खुद से लगा गया। मैं ऐसा नहीं चाहता था, पर आपके लफ्ज़ मुझे पल पल अजियत दे रहे थे। इतने दिन गुजर जाने के बाद भी वो लफ्ज़ मुझे पहले दिन की तरह चुभन दे रहे थे। मैं मेंशन से, शहर से, बल्कि इस मुल्क से चला गया था कि वो लफ्ज़ मेरी जान छोड़ दे, लेकिन वो ख़यानत मुझे इस हद तक जकड़ चुकी थी कि मैं खुद पे काबू नहीं रख पाया था। आप नहीं जानती ताबीर कि मैं आपके मामले में कितना जुनूनी हूँ। जान जाएंगी तो शायद अगला सांस भी ना ले पाए। इसकी जुनूनियत ताबीर की हिचकियाँ बढ़ा गई थी। ताबीर, उसने सामने की ताबीर को देखा जिसकी घुटी घुटी सिसकियाँ इसे बेकरार कर गई थी। बस अब नहीं रोना, जानता हूँ ओवर रिएक्ट कर गया था। ओवर रिएक्ट वो बमुश्किल खुद पर जब्त कर पाई, वरना दिल तो चाह रहा था कि उसका गला दबा दे। फिर सड़क पर होने का ख्याल उसे दूर होने पर उकसा गया था। इर्द गिर्द देखें हम कहाँ, इतना भी लापरवाह नहीं हूँ। उसने देखा तो ये बड़ा सा ग्राउंड था और तहद्दे निगाह पर एक घर नज़र आ रहा था जहाँ पर मध्यम रोशनियाँ जली हुई थी, पर इतनी भी रोशनी नहीं थी कि इन दोनों का वजूद नुमायाँ करते थे। इसी वीराने से खौफ तो आया था, पर ये जान का खौफ हर शय पर हावी था। शायद मुझे ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसने दोबारा ताबीर को करीब किया और कमर के गिर्द हाथ डाले कैद कर ली, जैसे वो फिर दूर हो जाएगी। ताबीर चुपचाप उसके सार में खड़ी, जैसे इसके करीब करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा हो। ताबीर, यज़दान की पुकार में शिद्दत थी। तुम्हारा निकाह है, देर हो जाएगी। वो दांत पर दांव जमाए बोली। चेहरा झुका हुआ था, पर लहजा सब जता गया था। यज़दान, जो इसके लड़ने की तवक्को किए खड़ा था, इसके बरक्स जवाब पर वो हैरान हुआ और फिर इसका कहको मढ़ाए। ताबीर को ढेरों रोना आया, पर खुद पर बंद बांधे अपनी मुट्ठी सख्ती से भींच गई कि नाखून उसका हाथ जख्मी करने लगे। गुस्सा आ रहा है या खौफज़दा है? वो समात के करीब झुक के बोला। घर जाना है मुझे, वो ज़ब्त से बोली। चलें फिर? वो इसकी मुट्ठी खोले बोला, जो अब ज़ख्मी कर चुकी थी। पता था मुझे, डर कर खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगी। उसने सुर्ख हथेली को छुआ था, पर ताबीर पर कोई असर नहीं। यस्तान, मुझे घर जाना है। उसकी गुराहट पर वो इसीलिए आगे बढ़ने लगा। कहाँ जा रहे हो? वो गाड़ी से कुछ दूर हो गए थे। घर, उसने यकलफ्सी जवाब दी। ये हमारा घर नहीं है। यानी आप इस मेंशन को अपना घर समझती हैं? मेरा फजूल बातें करने का कोई मूड नहीं। मुझे जाना है तो बस जाना है। वो ज़िद्दी हुई थी। लेकर तो जा रहा हूँ, ये हमारा अपना घर है। ताबीर हैरान हुई थी और इस जाने मुड़ी तो इसके भीगे चेहरे को रुमाल से साफ करने लगा। ताबीर चटपटाई थी। फेस खराब हो चुका है। अगर रोशनी में ये चेहरा मुझे डरा गया तो मैं मासूम बच्चा क्या करूँगा? यज़दान, मुझे जाना है। उसकी एक ही रट पर मुस्कुराया था। ये मेरे मामा पापा का घर और आपका ससुराल है। मुझे नहीं जाना। इसका दिल बुरी तरह घबराया था। एक तो पहले वो यज़दान के वहशी रूप से खौफज़दा थी, ऊपर से वो बिना बताए यहाँ ले आए थे, जिन्हें वो ज़रा भी नहीं जानती थी। क्यों नहीं जाना? यज़दान रुका था। बस नहीं जाना तो नहीं जाना, घर जाना है मुझे। अंदर चलेंगी तो रोना भूल जाएंगी, और जो मुझ पर शदीद गुस्सा आ रहा है वो प्यार में बदल जाएगा। वो दिल फरेबी से बोला। मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे इस वक्त बस तुमसे दूर होना है। वो भीगी आंखों को रगड़ती थकी हारी सी बोली। ताबीर, यार गुस्सा आ गया था। बस वो उसके कंधों के गिर्द हाथ जमाए उसे थाम गया था। गुस्सा? तुम्हारा गुस्सा मेरी जान ले जाता, जानते हो? ऐसा लग रहा था किसी भी पल तुम मुझे मार डालोगे। वो हाथ झटकती फांस से पड़ी। ताबीर, मेरे पास मत आना यज़दान, वरना मैं हर लिहाज भूल जाऊंगी। वह चेहरे पर पथरीले तासरात से जाते उसे इंगिश दिखाती रोक चुकी थी। पूरे 2 हफ्ते मुझे अपने नफ्सों पर पशेमानी हुई थी, अफसोस हुआ था। कल माफ़ी मांगना चाहती थी, एतराफ़ भी करना चाहती थी कि हाँ, मैंने वो सब जो भी कहा गलत कहा, पर तुमने सुनने के बजाय अपनी थकन का बहाना बनाया और चले गए। आज भी खुशी खुशी तुम्हारे साथ चली आई थी कि जहाँ ले जाओगे, जो कहोगे करूँगी, पर तुमने तुमने ये किया। गन, चाकू और न जाने क्या क्या मेरी गोद में सजा दिए। ये कैसा इंतकाम था? खौफ आता है मुझे गन से, और तुमने गन ही से डराया। मैंने आज तक वहाज भाई की गन को नहीं देखा। वो कभी मेरे सामने अपनी गन नहीं निकालते थे, पर तुमने 2 बार मुझे गन से ही डराया है। फिर कहते हो मुझसे मोहब्बत करते हो। ये तुम्हारी मोहब्बत है कि तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारी बीवी गन से डरती है, और फिर तुमने वो गन अपने माथे पर रख ली। कसम खा के कहती हूँ यज़दान, अगर तुम वो गन ना हटाते तो वो चाकू मैं इसी वक्त अपनी कलाई पर फेर लेती। अपना दबा गुबार निकालती हुई यज़दान को दहला गई थी। खबरदार, जो ऐसा किया। फौरी आगे आया, उसका चेहरा हाथों की प्यालियों में भरा। क्यों फिर ऐसे किया? बोलो। वो एक बार फिर रो दी। यज़दान कुछ नहीं बोला, बस सख्ती से खुद में भींच गया। तबीर की हिचकियाँ बढ़ने लगी थी। यज़दान के आसूदा लब मुस्कुराहट में ढलने लगे थे। जैसे भी सही, पर उसने आज इजहार कर ही दिया था। वैसे काफ़ी रोना धोना हो गया, अब अंदर चलें हम। उसके गंभीरता से कहने पर वो तड़क के दूर हुई। अब इस होलिये में जाऊंगी। उसके दोनों हाथ अपनी जाने मोड़े से घूरा। गुस्से की जगह अब अंदर जाने की फिक्र हावी हुई थी। क्यों? इस हुलियों को क्या हुआ? इतनी प्यारी तो लग रही है। ताबीर के बिखरे काजल मध्यम लिपस्टिक से सजे होंठों को देखकर लब दबाए शरारत से कहा।
मैं तुम्हें कब प्यारी नहीं लगती? फ़िज़ूल में हर बार कहते रहते हो, बहुत प्यारी लग रही हो। मुझे पता है रोने के बाद कोई प्यारा नहीं लगता, और जिस तरह तुमने मुझे डराया, धमकाया और रुलाया है ना, इसके बाद मेरा हुलिया खौफ़नाक ही लग रहा होगा। यज़दान मुट्ठी लबों पर जमाए बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट सँभाल पाया। तुम हँसकर क्या साबित करना चाहती हो? मत सोचना कि मैं तुमसे नाराज़गी ख़त्म करती। तुम्हारे साथ यहाँ आ तो गई हूँ, लेकिन मेंशन जाने के बाद मेरे कमरे में आने की ज़रूरत नहीं है, और ना मेरा मूड है तुमसे सुलह करने का। अगले ही पल यज़दान की मुस्कुराहट सिमटी। वो मेरा मेंशन है, मेरा कमरा है मैडम, जहाँ आप अपना हक जमाए बैठी हैं, और ऐसे कैसे सुलह नहीं करेंगी? आपके तो अच्छे भी करेंगे। वो चिढ़कर गोया, मेरे अच्छों से कर लो जाकर, और मेंशन चाहूँ तो आज ही अपने नाम लिखवा लो, फिर बताओ क्या कर लोगे? ताबीर ने दूबदू जवाब दिया। यज़दान उसकी दिलेरी पर आंखें फैलाए उसे देखने लगा। और आप कैसे अपने नाम लिखवाएंगी? यज़दान ने उसकी आंखों में झांका, जहाँ चैलेंज आमेज तासुर था। वक्त आने पे बता दूंगी, जैसे तुम बताते हो। फिलहाल मुझे थकन की वजह से नींद आ रही है। उसे झटकती गाड़ी की तरफ बढ़ी। थकन की वजह से नींद? वो बड़बड़ाया, लेकिन फिर समझ आने पर तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ा। मैडम, अब ये ताना कब तक मिलेगा? जब तक मेरा दिल चाहेगा। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। मुझे घर जाना है, और जो तुमने किया है ना, इसके बाद तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ वहाँ नहीं जाऊँगी। पता नहीं क्या सोचेंगे कि कितनी अजीब लड़की है, जिसे ढंग से तैयार होना भी नहीं आता। फिर कैसे जाएंगी? यज़दान, मेरा हुलिया देख लो। उसने लाइट ऑन किया, भरपूर तवज्जो से दोहराई। कुछ भी नहीं हुआ हुलिया को, 2 मिनट में आपका ये फीका चेहरा गुलाब रंग में रंग सकता है, बस इजाज़त दें। और इसकी जानिब झुकता ताबीर का दिल बुरी तरह धड़का गया था। खबरदार यज़दान मेरे करीब आए। वो उंगली उठाए से वान करती विंडो से चिपकी। आ चुका हूँ करीब, रोक कर दिखाई। उसका कलेजा खुमार आलूद था। ताबीर ने फौरी अपना चेहरा हाथों के प्याले में छुपाया। मुबादा वो बेबाक आदमी मौके से फ़ायदा न उठा रहे। पर काफ़ी देर कोई आहट नहीं हुई तो इसने हाथों के जरिए से यज़दान को देखा, जो बाहर देख रहा था। उसने डरते डरते हाथ हटाया, पर अगले ही पल वो बुरी तरह बौखलाई थी। इसके गाल पर शिद्दत से लम्स छोड़े वो फौरी सीधा हुआ कि ताबीर समझ ही ना पाई कि ये क्या हुआ है। पर गाल पर होते एहसास ने चेहरे पर गुलाल फैलाया था। चीटर आदमी, ताबीर चिढ़कर बोलती। उसको मारने को बढ़ी, पर यज़दान ने दोनों हाथ कैद कर लिए। मुझे अभी मेंशन जाकर आपसे बहुत कुछ कहना है, इसलिए बाकी लड़ाई हम अपने घर में करेंगे। यज़दान ने आंख विंग किए कहा तो ताबीर का चेहरा बिना किसी मेकअप के भी सुर्ख हुआ था। यज़दान ने पीछे झुककर एक बॉक्स उसकी गोद में रखा तो सुर्ख पड़ता चेहरा सफ़ेद हुआ। अब इसमें क्या बला है? फिर से अगर डराए तो तुम्हारी अब जान लेकर होंगी। ताबीर अपनी गोद में पड़े बॉक्स देखकर बोली। इसमें मेरे डरने का सामान है। ताबीर ने हैरत से उसे देखा, और फिर इस बॉक्स को खोला तो अंदर मेकअप प्रोडक्ट सी। ताबीर ने घुड़ती तेज कस पर डाली तो मसनूई से डरता कंधे झुका गया। रोज़ ने मुझे इतना अच्छा रेडी किया था, पर तुम्हारे फजूल मजाक की वजह से सब बर्बाद हो गया। अब मैं पहले जैसी तो नहीं लगूंगी ना? औरत का असली गम जाग गया। वो बड़बड़ाया। हाँ, औरत का असली गम ही ठीक, पर बिल्कुल दुरुस्त काम है। और ये जो तुमने मेरे साथ आज किए हैं ना, मैं तुम्हारे मामा पापा को ज़रूर बताऊंगी। मुंह बनाती अब चेहरा वाइप से साफ करने लगी। यानी अभी आप मिली भी नहीं और पहले ही शिकायत शुरू? वो हैरान हुआ था। हाँ बिल्कुल। वो कंधे चटकती अब अपना चेहरा संवारने लगी, पर यज़दान ने गहरी बेबाक नगाह उसके काम में खलल डाल रही थी। वापस चली जाऊंगी मैं, उसने मुस्कारा उसकी जाने मोड़े से धमकाया। यज़दान ने फौरी हाथ खड़े किए और चुपचाप बाहर निकल गया, ताकि अपना हुलिया बिना किसी खलल के अच्छे से दुरुस्त कर सके। इसके बाहर निकलने पर ताबीर ने सुकून का सांस लिया था। बदतमीज़ आदमी, कैसे किसी की जान लेनी है अच्छे से जानता है। मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए यज़दान को कोसने लगी थी, पर फिर उसकी हरकत पर शर्मगी मुस्कुराहट लबों पर फैल गई थी। बाहर खड़ा हुआ सिगरेट की गहरी कश लिए एक बार फिर ताबीर के अनोखे से इजहार पर मुस्कुरा दिया था। उसकी ज़हनी रोज ऐसे भटकी हुई थी, कभी बैठे बैठे मुस्कुरा देती तो कभी एकदम रोना आने लगता। कल से मुस्तकिल यही कैफियत थी। ऐसा लग रहा था ज़िंदगी एक मुकाम पे ठहरी ठहरी सी है। ना वहाँ जाया ना वो अपने गम से बाहर निकली। एक जमूत तारी था हर जाने पर। कब तक? अब जैसे खुद ही से थकी थकी सी थी। बेजारी बढ़ने लगी तो वो शावर लेने का सोचती वार्डरोब की जानिब आई। वहाँ लटकते कीमती मलबूसात को देखकर एक बार गम ताज़ा होने लगे। कितने अरमानों से उसने ये सब लिया था। वहाज का तस्वर हर वक्त हावी रहता था। इसके हवाले से ख्वाब बुनती हुई एक एक लबास नहायत शौक से लेती रही थी, पर आज वो सब उसे नकीले कांटों की तरह चुभने लगे। चुभन के साथ अब जैसे फ़ज़ा में हबस ही बढ़ने लगी। उसने जल्दी से वार्डरोब बंद की और खुद टेक लगाकर आंखें बंद किए गहरे सांस लेने लगी। एक बार फिर वहाज के लफ्ज़ों ने दिमाग पर अपना कब्जा जमा कर इसके हिसाब से खेलना शुरू किया था। अनाबिया वहाज की पुकार पर उसने दहल कर आंखें खोली। सामने अपने खौफ की वजह देखकर वो सुन हुई। पलके झपक उसने वहाज को दोबारा देखा। वो वहीं खड़ा था, सफ़ेद कुर्ते में, बालों को ऊपर जमाए, पाँव में ब्लैक सैंडल्स थे। वो कहीं जाने के लिए तैयार लग रहा था, कहीं वो इसकी मौत का परवाना नहीं ले आया। आप क्यों आए हैं?
چھوڑنے کے لیے اتنی منتوں کے بعد بھی چھوڑیں گے؟ نہیں، میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، میں نہیں۔ وہ وارڈروب سے لگی بری طرح ہانپتی وحاش کو حیران کر گئی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب آیا۔ وحاش، میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، پلیز مجھے مت چھوڑیے گا، پلیز وحاش۔ وہ ہاتھ جوڑتے ایک بار پھر کل والی کیفیت میں ڈرنے لگی، پر آج اس نے پہلے ہی انابیہ کو کندھے سے تھام کر سنبھال لیا تھا۔ میں صرف تم سے بات کرنے آئی ہوں، اس نے انابیہ کے کندھوں پر گرفت جمائے سنجیدگی سے کہا۔ انابیہ نے سہمی سہمی سی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ نیچے تمہارے ماما پاپا آئے ہیں، وہ اس کے چہرے کو آج پہلی مرتبہ بنا کسی رکاوٹ کے دیکھے بولا۔ مام ڈیڈ، اس کے سوکھے لبوں پر سرسراہٹ سے نکلی، پھر چہرے کی اداسی خوشگواری میں بدلنے لگی۔ میرے مام ڈیڈ، وہ یقین چاہتی تھی، اور وحاش نے ہنوز صدمہری سے سر ہلا کر اسے یقین دلایا، پر اگلے ہی پل اس کے چہرے پر خوف پھیلنے لگا۔ اس کا مطلب آپ مجھے ان کے ساتھ بھیجنا چاہتے ہیں؟ کیا مطلب؟ وحاش حیران ہوا تھا۔ آپ مجھے ان کے ساتھ بھیج کر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے؟ جب میں کہہ چکی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رہنا ہے، پھر بھی آپ مجھے بھیجیں؟ وہ وحاش کا گریبان جکڑ چکی تھی، وحاش کے ماتھے پر بل نمائے ہوئے۔ کیا بکواس ہے؟ کیا چھوڑنے کی رٹ لگائی ہے؟ کان پک گئے میرے؟ اگر تمہیں چھوڑنا ہوتا تو کب کا چھوڑ چکا ہوتا، یہ میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ اب اگر تمہارے دماغ سے یہ فتور نہیں نکلا تو تمہیں میں خود گھر سے باہر پھینک دوں گا، پھر اچھے سے چھوڑنے پر ماتم کرتی رہنا۔ اسے بری طرح جھنجھوڑے وہ گرایا تھا۔ نہیں، اس نے فوری نفی میں سر ہلایا، پھر درد سے لب کا کونا بھی دبایا۔ وحاش کو اپنی گرفت کی شدت کا احساس ہوا، کل بھی تو اس نے کافی زور سے اس کے کندھوں کو جکڑا تھا۔ وہ نازک جان کہاں اس حد تک جارحیت کی عادی تھی۔ بے ساختہ اس کے ہاتھ کندھے سے ہلانے لگے، جیسے اپنی جارحانہ لمس کا اثر مٹا رہا ہو۔ اس کی ذرا سی نرمی دل پر پڑے بوجھ کو ہٹانے لگی تھی۔ اس نے ان چند دنوں میں یہ چیز برابر محسوس کی تھی کہ وہ اس پر سختی کرتا تھا، یا پھر جب بھی اسے بری طرح جھڑک کر دھتکارتا تھا، اگلے ہی لمحے وہ پشیمان بھی ہو جاتا تھا۔ اس دن جب اس نے کمرے میں رہنے کے لیے ہاتھ جوڑے تھے، وحاش نے ہاتھوں کو تھام لیا تھا، اور آج بھی وہ یہی کر رہا تھا۔ وہ درد کرد تو تھا، پر مداوا بھی کرتا تھا، بنا احساس دلائے، بنا لفظوں سے۔ جلدی سے ریڈی ہو جو، ان سے اچھے سے ملو۔ اور وہ رکا تھا جیسے وہ لفظ جمع کر رہا ہو۔ انابیہ نے گلابی پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اور یہ یقین کر لو کہ میں تمہیں اب نہیں چھوڑوں گا، نہ آج نہ کبھی، اس نے نظر چرائے کہا، جیسے یہ لفظ دل پر جبر کر کے کہہ رہا ہو۔ کبھی جو کہتا تھا کہ چھوڑ دوں گا، آج کہہ رہا تھا نہیں چھوڑوں گا۔ یقین کرتی تو کس بات پر کرتی؟ وحاش، کس پر یقین کرو؟ نابیہ نے بے یقینی سے اسے پکارا، اور اس نے نابیہ کو دیکھا، اور پھر کوئی شک باقی نہیں رہا۔ آج کے کہے لفظ سچے اور اٹل تھے۔ انابیہ کو لگا جیسے وہ پھر سے جی اٹھی۔ کہنے کو چند لفظ تھے، پر اس کے لیے جینے کی وجہ بن گئے تھے۔ اس کی روتی آنکھیں مسکرانے لگی تھی۔ ریڈی ہو جاؤ، کوشش کرنا شاور لے کر فریش ہو کر نیچے آؤ۔ اس کی ملچک کے حلیے پر نظر ڈالتا ہوا نابیہ کو بخلانے پر مجبور کر گیا۔ 3 دن سے اس نے وہی فراق پہنا ہوا تھا، یعنی وحاش کو اس کا حلیہ گندا مندہ برا سا لگ رہا تھا۔ اسے خود پر شدید افسوس ہوا، وہ نہ جانے کیا سوچ رہا ہوگا۔ وہ نکھرا نکھرا سا خوشبوؤں میں بسا ہوا تھا، جبکہ وہ 3 دن پرانے لباس میں تھی۔ وہ مجھے یاد ہی نہیں رہا چینج کرنے کا، بس وقت نہیں ملا۔ وہ خسیات سے مسکرائی، جبکہ دل چاہ رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جائے۔ ایسی خفت کا سامنا بھی کبھی ہوگا، اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ کر لو، وہ نرمی سے بولے۔ درہا نابے فوری تیز قدموں سے واش روم میں بھاگی، جیسے وہاں رکی تو نہ جانے کچھ ہو ہی نہ جائے۔ واج اس کی پھرتی پھیلی آنکھوں سے دیکھی، پر اگلے ہی پل اس کے سنجیدہ لب پھیلنے لگے۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر وارڈروب سے ٹیک لگاتا واش روم کی جانب دیکھنے لگا، پر انابیہ کو دوبارہ باہر آتے دیکھ کر حیران ہوا۔ میں ڈریس لے لوں؟ اس نے انگلی سے وارڈروب کی جانب اشارہ دیا۔ ڈریس؟ وحاش، آپ وارڈروب کے سامنے ہے تو میں لے لوں؟ انابیہ کی وضاحت پر وہ وہاں سے ہٹا۔ ہاں ضرور، جلدی آنا نیچے۔ وہ اس کے پاس سے گزرا تو کندھا بے ساختہ اس کے چوڑے بازو سے مس ہوا۔ ایک برقی سی انابیہ کے وجود میں دوڑی۔ وحاش کو بھی اس کا لمس ایک پل کے لیے واضح محسوس ہوا تھا، پر وہ دل کو ڈپٹے کمرے سے نکلا۔ انابیہ کو اپنے ارد گرد اس کی خوشبو شدت سے محسوس ہونے لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر گہرے گلابی رنگ کا لانگ شرٹ اور ہم رنگ کیپری اور وارڈروب سے نکالے۔ اگلے ہی پل وہ خوشی سے جھومتی مڑی، پر دروازے پر وحاش کو دیکھتی اچھلی تھی، جو حیرانگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ میں جا رہی تھی، فریش ہونے جا رہی تھی، اور پھر وہ رکی نہیں تھی، واش روم میں جا کر ہی دم لیا۔ وحاش جس کی بے وقوفی پر نفی میں سر ہلا کر رہ گیا تھا۔